Hi students, how are you? Myself Avik Roy from the Mathematics Icon channel, your mathematics teacher. So, in the last lecture we had discussed about the by parts integrations. Okay, that means how to integrate one particular functions by using this by parts method. And what do you mean by by parts method? In that particular structure, two or more functions will be involved, okay, in a multiplication form. Then you will have to use u into v formula of integration. Okay, जैसे कि मैंने बोला था कि इंटीग्रेशन u इंटू भी डी एक्स इक्वल्स टू यू भी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ u इंटीग्रेशन भी डी एक्स बाहर डी एक्स. ये है एक फॉर्मूला जिसमें एक चीज यूज होता है, वो है ILATE. ये जो चेन है, ये चेन यूज होता है किसमें? u इंटू भी स्ट्रक्चर में. जैसे डिफरेंशिएशन में हम लोग डी डी एक्स ऑफ u इंटू भी करते थे, बट देयर वॉज नो रिस्ट्रिक्शंस ऑफ चूजिंग u एंड v particularly. But here you have a restriction, you have a boundary. Okay, so you have to use this elate chain for choosing the u and v. So what do you mean by elate chain? Elate chain means I for inverse, L for log, A for algebraical part, T for trigonometry, E for exponential part. तो इस सीक्वेंस में जो आगे रहेगा उसी को ही आप u चूज करेंगे, जो बाद में रहेगा वो भी होगा. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एक्चुअली whatever the questions will be given, okay, just you need to figure out which one is in the first position and which one is the second. So after choosing the first one, you will have to indicate that particular function as u and the other function is v. ओके, तो हम लोगों ने शायद लास्ट लेक्चर में कुछ बेसिक क्वेश्चंस हम लोगों ने u इंटू भी यूज करके किया था. अब इस लेक्चर में भी हम लोग बोर्ड स्टैंडर्ड का कुछ क्वेश्चंस करेंगे और एनसीईआरटी के भी कुछ क्वेश्चंस यहां पर हम लोग करेंगे. तो ये चेन आप लोग साइड में जो है लिख लीजिए, जो मतलब यूज होगा. ठीक है, तो ये फॉर्मूला ऊपर लिख के रखो. ये तो यूज होगा. अभी लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, इंटीग्रेशन x cos इनवर्स x बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx. ठीक है, तो यहां पर देखो, एक चीज तो साफ साफ मुझे दिखाई दे रहा है कि बिफोर स्टार्टिंग दिस u इंटू भी स्ट्रक्चर, before starting the u into v structure, at first we need to think about the simplification. That means how can you make this this given question as simple as possible? So how can you make? So just you can see, if you take cos inverse as z, cos inverse को अगर मैं z ले लूं, cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि डिनोमिनेटर पार्ट में रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर देखने से ही दिमाग में मेरा स्ट्राइक कर दिया है कि अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं तो हो सकता है थोड़ा बहुत सिंपल बन जाए क्वेश्चन. तो यहां पर dx इक्वल्स टू dz. सो दैट मीन्स dx बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस dz. ओके, सो दैट मीन्स if you have dx by root 1 minus x square, that means minus dz है कि नहीं? so that means देखो, इसके जगह हम लोग माइनस dz बिठा सकते हैं. ठीक है, ये जो सर्कुलर पार्ट है, cos इनवर्स x के जगह हम लोग यहां पर z बिठा सकते हैं, और x की जगह यहां पर क्या बिठाएंगे? यहां पर क्वेश्चन है, x के जगह यहां पर cos z बिठाएंगे. so that means cos z into z. so now z cos z. Now you can see two different functions are in the multiplication form. So you need to use u into v structure.
So but after, before actually this using this u into v, you need to figure out which one is u and which one is v by using this elate property. So you can see z is the algebraical term, cos z is the trigonometrical term. So which one in the first position, algebra या फिर trigonometry? Elate property, ATE algebra is in the first and trigonometry is in the second. So that means ये u होगा और ये v होगा. So just you need to use the formula minus sign u, z cos z dz minus ddz of z cos z dz dz. So minus z integration cos z means sin z minus इंटीग्रेशन डी डी जेड ऑफ z मीन्स 1 और इधर sin z dz हो गया. सो माइनस z sin z और sin z का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस ऑफ माइनस cos z, ओके, प्लस c. सो नाउ माइनस z मतलब यहां पर आप लोगों ने क्या लिया था, cos इनवर्स x. जस्ट यू नीड टू रिप्लेस दिस z बाई cos इनवर्स x. ओके, सो z को लास्ट में तो आपको रिप्लेस कर देना है, cos इनवर्स z प्लस यहां पर cos और cos इनवर्स आप कैंसिल भी कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करके आंसर फाइनली लिख सकते हैं, यहां पर भी छोड़ सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है. ठीक है, फिर पॉज करो, पॉज करके लिख लो. ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जाओ. इंटीग्रेशन नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन x ब्रैकेट sec twice x minus 1 by sec twice x plus 1 sec twice x plus 1 dx. तो ये जो sec twice x minus 1 sec twice x plus 1, is there any formula regarding sec twice x minus 1 and sec twice x plus 1? Or if you want to actually this, just remember one thing, before starting the question and before starting the solution, actually before starting the solution, you need to think about the given question, whether it is in the simplest form or not, whether it is in the complicated form or in the simple form. So if that means if it is not seems like actually this simplest form, then you have to make it simple as so much as possible. Okay, so sec twice x minus 1 sec twice x plus 1, चेहरा देखने से क्या लगता है, sec twice x minus 1 sec twice x का फॉर्मूला भी हम लोग को नहीं पता है. हाँ, cos twice x का पता है, sec twice x का नहीं पता है. तो sec twice x को हम लोग cos twice x में तो कन्वर्ट तो कर सकते हैं, ऐसा कुछ वो तो यहाँ पर कोई ऐसा बिग मैटर तो नहीं है. तो दैट मीन्स 1 बाई cos twice x माइनस 1 बाई cos twice x प्लस 1. देखो हो गया. ठीक है, फिर उसके बाद देखो x, अगर मैं यहां पर एलसीएम करूं 1 माइनस cos twice x बाई 1 प्लस cos twice x dx, तो यहां पर x 2 sin स्क्वायर x बाई 2 cos स्क्वायर x dx. ओके, 2 कैंसिल, x साइन स्क्वायर x बाई cos स्क्वायर x, इसको तो हम लोग tan स्क्वायर x लिख सकते हैं. ठीक है ना. अब प्रॉब्लम ये है tan स्क्वायर x tan स्क्वायर x, अच्छा u भी हम लोग ले सकते हैं, u भी. अब u कौन सा है, v कौन सा है, अच्छा वही मैं बोल रहा हूं, एल्जेब्रिकल पार्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल पार्ट. हाँ, तो x होगा यहां पर u और tan स्क्वायर x होगा यहां पर भी. जस्ट यू कैन यूज दिस u इंटू v प्रोसेस ऑल्सो. ओके, यू कैन यूज. सो
एक्स टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन यू भी डी एक्स, इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ यू भी डी एक्स, भी डी एक्स बाहर डी एक्स एक्स। अब इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर एक्स, इसका तो कैसे करें, इसका ना ही कुछ फॉर्मूला हम लोग को पता है, ना ही कोई दूसरा कोई स्ट्रक्चर, तो ये कैसे करें? ठीक है, तो एक काम कर सकते हैं, टेन स्क्वायर एक्स को तो सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स करके तो लिख सकते हैं, और इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ एक्स मतलब वन, इधर सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स, एक्स इंटीग्रेशन सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन वन डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस डी एक्स। ठीक है, तो x इंटीग्रेशन सेक्स स्क्वायर एक्स मीन्स 10x माइनस एक्स माइनस 10x प्लस एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, इंटीग्रेशन सेक्स स्क्वायर एक्स मीन्स 10x, इंटीग्रेशन डी एक्स मीन्स x प्लस सी हो गया। तो अगर मैं यहां पर डायरेक्ट u इंटू भी करके मतलब शुरू करता तो यहां पर खत्म कहां पर होता, नो आइडिया। ठीक है, तो सॉल्यूशन शुरू करने से पहले थोड़ा आंख कान नाक थोड़ा आपको खुला रखना है। ठीक है, अगर चेहरा खराब हो, देखने में अगर उसका चेहरा खराब हो तो आप लोग सबसे पहले उसको सिंपल करने की कोशिश करेंगे। यू नीड टू ट्राई टू मेक इट सिंपल एंड आफ्टर दैट यू शुड स्टार्ट द सॉल्यूशन। ओके, सो बिफोर थिंकिंग the question and before analyzing the question, don't start the solution. Okay, just remember my word. So next, अभी जो करेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, लिखो इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन x प्लस 1 इंटू e टू द पावर x log x e टू द पावर x dx। देखो, देखने से ही जो है ना, आधा तो यहां पर पसीना यहां पर ही छूट जाए, बट एकदम सिंपल है। मैंने बोला था चेहरा अगर खराब हो उसको सिंपल बनाओ। चेहरा सिंपल बनाने के लिए सबसे पहले आपको चेहरा जो है सुंदर बनाने के लिए, अगर कोई भी चेहरा हो उसको अगर सुंदर अगर बनाना आप चाहते हैं, फाउंडेशन यूज करेंगे। तो यहां पर मैथमेटिक्स में स्पेशली इंटीग्रेशन में फाउंडेशन मतलब है सब्स्टिट्यूशन। यही एक आपके पास रास्ता है जिससे आप किसी भी क्वेश्चन को सिंपल बना सकते हैं, अगर डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है तो यहां पर देखो, अगर मैं सब्स्टिट्यूट करना चाहूं किसको करूंगा, तो लेट x e टू द पावर x इक्वल्स टू z। चेहरा इसका ही थोड़ा खराब दिख रहा है मुझे, तो यहां पर अगर मैं u इंटू भी यूज करूं, u भी, ये u ये भी, x e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x u डी डी एक्स ऑफ b b डी डी एक्स ऑफ u, और बाहर dx होगा dz। e टू द पावर x अगर मैं कॉमन लूं, ये dx dz हो गया ना, देखो तो। ठीक है, सो दैट मीन्स log z dz। अरे भाई ये तो सिंपल मतलब क्या, बहुत ही सिंपल हो गया ना। इंटीग्रेशन में अभी log का फॉर्मूला ही नहीं पता, हम लोग कैसे सॉल्व करें उसको, कैसे प्रोसीड, हाउ कैन आई प्रोसीड दिस क्वेश्चन, दिस सॉल्यूशन, log z ओनली, log z dz है, तो log z है ना, log z में हम लोग कैसे अभी, हाउ कैन आई प्रोसीड दिस थिंग,
है। तो इस टाइप का जो केस है log z का इंटीग्रेशन हम लोग को नहीं पता है, मतलब फॉर्मूला नहीं पता है कुछ, ठीक है। तो इस टाइप का अगर टर्म ऐसे सिंगल में आपको दिखाई दे तो आप लोग इंटू 1 तो लिख ही सकते हैं। तो जब इंटू 1 होता है ना, इंटू 1 को आप भी लोगे और इसको u लोगे, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं u इंटू भी यूज करूं, जैसा log z इंटू 1 होता है, log z होता है, साइन इनवर्स x होता है, कोई भी इनवर्स फंक्शन का, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन का अगर दिया जाए इंटू 1 करके u इंटू भी आप यूज कर सकते हैं। log z फंक्शन मतलब log का फंक्शन ये इंटू 1 करके u इंटू भी आप यूज कर सकते हैं। अदर देन दैट यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। ओके, सो आपको यही प्रोसेस अप्लाई करना है। तो u इंटू भी यूज करेंगे ना, तो दैट मीन्स log z dz माइनस इंटीग्रेशन ddz ऑफ log z dz बाहर dz, that means log z into z minus integration z of log z means 1 by z, integration dz means z dz, so z dz minus z cancel, integration dz, z log z minus z plus c, z के जगह x e to the power x log x e to the power x minus x e to the power x plus c, ठीक है, हो गया। हो गया ना, देखो एकदम सिंपल तरीके से निकल गया आंसर, ठीक है। हो गया। फिर नेक्स्ट जाएंगे, फिर नेक्स्ट जाओ। इंटीग्रेशन साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब dx, इसको कैसे करेंगे? साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब dx, हाउ कैन यू फाइंड द आंसर हियर? हाउ इज दिस पॉसिबल? जस्ट टेल मी, हाउ इज दिस पॉसिबल? तो यहां पर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, अगर यहां पर ऐसा हो, यहां पर देखो u भी तो यूज नहीं कर सकते क्योंकि एक ही टर्म है। इंटू 1 अगर मैं करूं तो भी का पार्ट यहां पर मिल जाए, तो यहां पर u ये होगा और इंटू 1 जो है वो भी होगा। हाँ, ये तो कर सकते हैं हम लोग। इसके अलावा दैट मीन्स ये क्वेश्चन देखने में ही देखो, मतलब कैसा लग रहा है ना, ये क्वेश्चन देखने से ही देखो, साइन इनवर्स के अंदर इतना पेचीदा एक एंगल है, इट सिम्स लाइक ए वेरी एक्चुअली द कॉम्प्लिकेटेड वन, दिस एंगल 3x माइनस 4x क्यूब। आपने एक फॉर्मूला देखा है क्या? देखिए, तो मैं लिख रहा हूं, थोड़ा रिकॉल करिए। साइन 3 थीटा इक्वल्स टू साइन 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये फॉर्मूला आप लोगों को पता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। सो यहां पर देखो तो कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है क्या? 3x माइनस 4x क्यूब, x के जगह अगर मैं सोचूं कि साइन थीटा है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं यहां पर x के जगह साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करूं तो dx इक्वल्स टू साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा डी थीटा। देखिए तो साइन इनवर्स इसके जगह 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा हो गया, dx के जगह कॉस थीटा डी थीटा। तो साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर साइन 3 थीटा कॉस थीटा डी थीटा है कि नहीं? साइन इनवर्स और साइन कैंसिल, 3 थीटा कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। ये 3 तो कांस्टेंट बाहर लेके आ सकते हैं हम लोग, 3 थीटा कॉस थीटा डी थीटा।
तो यहां पर इजीली हम लोग u इंटू भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, कर सकते हैं ना u इंटू भी। तो यहां पर u कौन सा होगा और v कौन सा होगा, ये थोड़ा बोलिए तो। थीटा तो एल्जेब्रिकल टर्म, आप बोलोगे सर थीटा एंगल है, ये तो यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्रिकल टर्म है थीटा। नहीं रे भाई, अगर थीटा कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के साथ इन्वॉल्व है तो वो ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन है। सिंगल थीटा इट इज द रेडियन वेलो, इट इज अ कांस्टेंट, मतलब जस्ट लाइक नॉट ए कांस्टेंट एक्चुअली, इट इज द रेडियन वेलो ना। और थीटा जो है वो सिर्फ थीटा अगर रहे वो ट्रिगोनोमेट्री डिनोट नहीं करता है, रिमेंबर वन थिंग। अब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के साथ अगर इन्वॉल्व है तो ट्रिगोनोमेट्री है, ठीक है। जैसे ये ट्रिगोनोमेट्री है बट ये ट्रिगोनोमेट्री नहीं है, ठीक है। तो यहां पर कौन सा u होगा कौन सा b होगा, ये एल्जेब्रिकल है और ये क्या है, ट्रिगोनोमेट्री है, तो कौन सा आगे होगा देख लो। थीटा cos थीटा d थीटा माइनस इंटीग्रेशन डी डी थीटा ऑफ थीटा इंटीग्रेशन cos थीटा d थीटा बाहर d थीटा, दैट मीन्स 3 थीटा साइन थीटा माइनस इंटीग्रेशन डी डी थीटा ऑफ थीटा मीन्स 1 और cos थीटा का इंटीग्रेशन यहाँ पर साइन थीटा, सॉरी साइन थीटा d थीटा। तो 3 थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस cos थीटा होता है। सो 3 थीटा साइन थीटा माइनस माइनस प्लस cos थीटा प्लस c, ठीक है। अब थीटा की जगह रिप्लेस तो करना है क्योंकि थीटा वाला पार्ट जो है वो तो सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है। ओरिजिनली तो क्वेश्चन में x था, तो थीटा इक्वल्स टू क्या है, साइन इनवर्स x। देखिए तो थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स x है। तो जहां जहां पर आपको थीटा मतलब दिखाई देगा वहां पर आप साइन इनवर्स x यूज कर देंगे। दैट मीन्स ये साइन इनवर्स x और ये साइन थीटा मतलब साइन इनवर्स x प्लस cos थीटा मीन्स साइन इनवर्स x प्लस c, बस हो गया। और ये साइन और साइन इनवर्स कैंसिल होकर सिर्फ x रहेगा। ये तो फिनिशिंग में आप लोग लिख ही लोगे, ठीक है, या फिर ऐसे भी रख दो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। है कि नहीं। फिर सिमिलरली ये स्पेशल टाइप का केस होता है, ठीक है। ये थोड़ा याद रखिएगा, ये सब स्ट्रक्चर थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है। और इसके लिए तो आपको सब मल्टीपल का फॉर्मूलाज याद रखना है। अगर वही फॉर्मूला मतलब याद ना रहे तो आप फॉर्मली स्टार्ट करेंगे। जो क्वेश्चन यहाँ पर 10 लाइन में ख़त्म हो गया है वही करने के लिए आपको 25 लाइन लगेगा। एकदम सिंपल। कौन बोलता है इंटीग्रेशन टफ है? इंटीग्रेशन बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट होता है। इफ यू मेक इट इजी then I think this chapter will be easy. But if you don't make it easy, then I think this integration part is not a easiest or the easier part of calculus. Okay. So you have to make it easy, no? So next, tan inverse integration tan inverse tan inverse 3x minus x cube by 1 minus 3x square dx। तो ये क्वेश्चन देख के आपको क्या लग रहा है? चेहरा बहुत ही खराब है, ठीक है ना। तो अगर मैं सोचूं, यहां पर एक फॉर्मूला तो है हम लोग के पास, हम लोग जानते हैं tan 3 थीटा का फॉर्मूला, ठीक है। अब थोड़ा याद करिए तो tan 3 थीटा का फॉर्मूला यहां पर क्या है। अब देखो बाहर आप मतलब अगर फॉर्मूला याद ना रहे तो आप लोग बोलेंगे कि बाहर tan इनवर्स है तो अंदर जो है tan का ही कुछ एक्सप्रेशंस जो है वो आएगा जिससे ये tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाए, ठीक है।
तो दिमाग में पहले ही 10 का कुछ एक्सप्रेशंस आपको लाना है, यहाँ पर ये आपका दिमाग में आपको लाना है। तो यहाँ पर x की जगह क्या बिठाने से यहाँ पर 10 का एक्सप्रेशंस आ जाए, वही आप सोचेंगे। तो यहाँ पर जैसे 10 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है। सो दैट मीन्स x की जगह अगर मैं tan थीटा यहाँ पर सब्सटीट्यूट करूँ, सो dx इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा d थीटा, tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा d थीटा। तो यहां पर tan इनवर्स ये कौन सा है, tan 3 थीटा, tan 3 थीटा का फॉर्मूला है। और सॉरी dx की जगह तो आपको ये बिठाना है sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ये जो dx है इसके जगह तो आप ये बिठाएंगे sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो यहाँ पर tan इनवर्स और tan कैंसिल रहेगा, सिर्फ 3 थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ये 3 जो है वो बाहर आएगा, दैट मीन्स 3 थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो u भी तो बन गया, थीटा यहाँ पर अलजेब्रिकल पार्ट, sec स्क्वायर थीटा यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिकल पार्ट। तो शुरू कर दो यहाँ पर, बस हो गया और क्या, ठीक है। शुरू कर दो। 3 थीटा इंटीग्रेशन sec स्क्वायर थीटा d थीटा माइनस इंटीग्रेशन dd थीटा ऑफ थीटा इंटीग्रेशन sec स्क्वायर थीटा d थीटा बाहर d थीटा, 3 थीटा tan थीटा माइनस dd थीटा ऑफ थीटा मीन्स 1 और इधर tan थीटा d थीटा, 3 थीटा tan थीटा माइनस tan थीटा d थीटा, फॉर्मूला क्या आएगा, log mod sec थीटा प्लस c। थीटा यहां पर थीटा की जगह कौन सा बिठाएंगे आप, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x, tan ये थीटा की जगह tan इनवर्स x माइनस log sec थीटा की जगह tan इनवर्स x, मतलब हर थीटा की जगह आप tan इनवर्स x बिठाते जाइए, बस हो गया, आंसर निकल गया, हो गया ना। ठीक है। फिर हाँ यहाँ पर मतलब स्ट्रक्चर का क्वेश्चंस जो है ऐसे ही आपको करना है तो ज़्यादा यूजफुल होता है, ज़्यादा इजी होता है, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको ये फॉर्मूला जो है आप लोगों को थोड़ा याद रखना है, tan 3 थीटा tan 2 थीटा sin 2 थीटा sin 3 थीटा, ये सब का फॉर्मूला जो है आप लोगों को थोड़ा याद रखना है। और ये सब फॉर्मूलाज तो हम लोगों ने लाखों करोड़ों बार यूज़ किया है, आप लोगों को तो अभी तक जो है आई थिंक अब तक आपने ये रट्टा मार लिया होगा। इस टाइप का तो हम लोगों ने बहुत सारा यूज़ किया है टिल नाउ, ओके, वी हैव यूज्ड मल्टीपल टाइम्स, दैट मीन्स आई मीन टू से द फॉर्मूलाज एक्चुअली दिस नो sin 2 थीटा cos 2 थीटा tan 3 थीटा tan 2 थीटा, दिस फॉर्मूलाज वी हैव यूज्ड मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट इंटीग्रेशन x tan इनवर्स x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर ए होल टू दी पावर 3, ये जब ये पावर 3/2 वाला है ना, ये पावर 3/2 जब आ जाए तब सबसे पहले ये पावर 3/2 को तोड़ के जो भी क्वेश्चन हो पावर 3/2 को तोड़ के ऐसा आपको लिख लेना है बस, ठीक है। मतलब पावर रूट मतलब पावर हाफ और नॉर्मल टर्म मतलब पावर 1, तो हाफ और 1 प्लस होके तो एक तो 3/2 निकलता है कि नहीं, तो 3/2। तो यहाँ पर तो साफ साफ मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर तो tan इनवर्स x है और 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी है। तो अगर मैं tan इनवर्स x को z लूँ तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल्स टू dz, थोड़ा बहुत तो सिंपल तो होना चाहिए। तो दैट मीन्स और x की जगह क्या लिखेंगे,
x के जगह tan z लिखेंगे। सो दैट मीन्स इस x के जगह tan z, tan इनवर्स x के जगह z, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये तो पूरा dx बाई दिस, ये तो dz में चला गया, बाकी रह गया ये रूट ओवर क्या होगा 1 प्लस tan स्क्वायर z। तो यहां पर tan z रूट ओवर sec स्क्वायर z dz। तो यहां पर sin z बाई cos z बाई 1 बाई cos z dz, cos z कैंसिल, z sin z dz, u भी, तो z sin z dz माइनस इंटीग्रेशन ये डी डी जेड ऑफ क्या होगा, डी डी जेड ऑफ z है ना, z इंटीग्रेशन साइन z dz बाहर dz, ठीक है। फॉर्मूला तो एक ही यूज हो रहा है, बार 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 यहां पर एक ही चीज आप यूज कर रहे हैं, है कि नहीं। सो दैट मीन्स z साइन z का यहां पर होता है माइनस कॉस z माइनस इंटीग्रेशन डी डी जेड ऑफ z मीन्स 1 और यहां पर माइनस कॉस z dz माइनस z cos z माइनस माइनस प्लस ये साइन z प्लस c माइनस, अब z के जगह वैल्यू बिठा सकते हैं, z के जगह क्या है tan इनवर्स x cos tan इनवर्स x प्लस साइन tan इनवर्स x प्लस c इंटीग्रेशन साइन इनवर्स रूट x बाई a प्लस x dx। ठीक है, तो देख के तो लग रहा है कुछ तो यहां पर तो कुछ ना कुछ तो है यहां पर, है कि नहीं। तो ये स्ट्रक्चर थोड़ा ध्यान से देखो, ये जो स्ट्रक्चर है ना ये थोड़ा ध्यान से देखो। नॉर्मल भी हम लोग कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं नॉर्मली हम लोग नहीं कर सकते हैं, बट कुछ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स होता है, जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, पर्टिकुलर कुछ स्ट्रक्चर्स होता है जो मतलब जो होने से क्या होता है, आप लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर x के जगह अगर a tan थीटा सब्स्टिट्यूट करूं, ठीक है, क्यों मैंने tan थीटा सब्स्टिट्यूट किया है, क्यों मैंने साइन थीटा नहीं किया है, क्यों मैंने कॉस थीटा नहीं किया है, क्यों मैंने सेक थीटा नहीं किया है, तो व्हाई आई एम यूजिंग दिस a tan थीटा पर्टिकुलरली, now you will get to know after one line. Okay, so dx, at least just write this part, x equals to tan a tan theta, that is our substitution. Dx equals to a sec square theta d theta, right? So sine inverse, now back to the integration, root x की जगह क्या लिखेंगे, a tan theta divided by एक काम करिए, x इक्वल्स टू a tan स्क्वायर थीटा लीजिए। ठीक है, क्योंकि देखो यहां पर x है ना, x है, तो सिर्फ tan थीटा लेने से इतना फायदा यहां पर होगा नहीं। ठीक है, तो tan स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2 tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा का होता है 2 tan थीटा, फिर tan थीटा का क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ठीक है, अब थोड़ा बिठाइए, तो क्योंकि मुझे ये देखने से मतलब यहाँ पर आने से ही पता चल गया कि यार यहाँ पर तो tan थीटा होने से ना ही रूट कैंसिल होगा, ना यहाँ पर कुछ फायदा होगा यहाँ पर ज़्यादा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर स्क्वायर होने से a प्लस a tan स्क्वायर थीटा, और dx की जगह आप लोग 2a
टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा लिख सकते हैं। तो साइन इनवर्स रूट ए टेन स्क्वायर थीटा बाई, यहां पर ए कॉमन लेने से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यहां पर ट्वाइस ए टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, राइट। ए कैंसिल, तो यहां पर साइन इनवर्स रूट टेन थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मीन्स सेक थीटा, ओके। ट्वाइस ए टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। तो ये टेन थीटा बाई सेक थीटा, उसको अगर मैं साइन कोस में चेंज करूं क्या मिलता है, थोड़ा देखो तो। क्या मिलता है थोड़ा देखो तो, मतलब कुछ अच्छा। यहां पर देखो स्क्वायर स्क्वायर है ऑब्वियसली, तो साइन इनवर्स देखो तो साइन कोस में चेंज करने के बाद रूट के अंदर ऐसा कुछ आता है कि नहीं, साइन स्क्वायर थीटा आता है कि नहीं, और इधर ट्वाइस ए टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा है कि नहीं। तो ये स्क्वायर और रूट कैंसिल, क्या रहेगा, सिर्फ साइन इनवर्स साइन थीटा, तो साइन इनवर्स और साइन कैंसिल होकर सिर्फ थीटा रहेगा ना। फिर यहां पर ट्वाइस ए टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। फिर ट्वाइस ए को बाहर लिख दो और यहां पर थीटा टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, हो गया, हो गया ना। अब यहां पर क्या करें, ठीक है। ये तो पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस हैं, ये एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन है। तो यहां पर अगर फॉर्मूला अगर मैं यूज करूं u v dx, दैट मीन्स टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन डी डी थीटा ऑफ थीटा इंटीग्रेशन टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अच्छा, यहाँ पर ये इंटीग्रेशन मिलने के बाद तो ये चीज़ यहाँ पर से हटा दो, फिर उसके बाद देखो एकदम सिंपल तरीके से हो जाता है ये सब है। थोड़ा यहाँ पर आपको सिक्वेंशियल, थोड़ा आपको कूल रह के काम करना है, ठीक है। जैसे ट्वाइस ए, यहाँ पर देखो हर जगह इंटीग्रेशन के अंदर टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा, टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा, ऐसा कुछ है ना। तो दैट मीन्स अगर मैं टेन थीटा को सब्स्टिट्यूट कर दूं ऐसा कुछ बन जाएगा। सो दैट मीन्स हर जगह ये जो है ना आपने सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा देखो। तो यहाँ पर ट्वाइस ए थीटा ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, सिर्फ जेड डी जेड माइनस ये तो डी डी थीटा ऑफ थीटा 1 जेड डी जेड, बाहर डी थीटा, ठीक है। ये तो सिर्फ ये जो अंदर का जो इंटीग्रेशन है वो मैंने किया है, जेड सब्स्टिट्यूट किया, बाहर ये एक जेड है ना, और सॉरी ये एक इंटीग्रेशन है ना, होल थिंग के बाहर एक डी थीटा है, वही मैंने लिखा। अंदर जो है वो चल रहा है काम अभी तक। ट्वाइस ए थीटा जेड स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर बाई 2 डी थीटा। अब जेड की जगह आप वैल्यू बिठा दीजिए, जेड मतलब टेन स्क्वायर थीटा, ट्वाइस ए थीटा टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा, ट्वाइस ए थीटा टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस हाफ इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर थीटा माने की टेन स्क्वायर थीटा मतलब क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 डी थीटा। अब कर लो ये क्या है, सेक स्क्वायर थीटा मतलब यहां पर टेन थीटा होता है, बस कर लो क्या है।
कंप्लीट कर लो। तो यहाँ पर ट्वाइस ए थीटा टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस हाफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस माइनस प्लस हाफ इंटीग्रेशन डी थीटा। So that means twice a theta tan square theta by 2 minus half sec square theta का tan theta plus half theta plus c। बस हो गया ना। So that means यहां पर जो भी क्वेश्चंस आज हम लोगों ने किया है वो सब क्वेश्चंस देखो थोड़ा हटके है। नॉर्मल यू भी तो आप करेंगे, नॉर्मल यू भी प्रोसेस तो आप मैंने किया है फर्स्ट लेक्चर में। देखो नॉर्मल यू इंटू भी कुछ तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन यूज करके मतलब, और ये जो क्वेश्चंस है ये सभी इंपॉर्टेंट होता है। डायरेक्ट यू भी वाला पार्ट तो देंगे नहीं है, डायरेक्ट यू भी देने से तो बस हो गया, फॉर्मूला यहाँ पर रट्टा मार दोगे, फिर उसके बाद बिठा के आंसर निकाल दोगे। ओके तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पर तो सब्स्टिट्यूशन तो यूज होगा, जिससे मतलब थोड़ा बहुत स्टैंडर्ड बढ़े क्वेश्चन का। ठीक है, फिर उसके बाद एनसीईआरटी में तो कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। जो भी इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी में तो हो गया 7.6 एक्सरसाइज। और इसमें तो मुझे यहाँ पर हाँ एक क्वेश्चन है, जैसे ये एनसीईआरटी का है, देखो tan इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स tan इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स इंटीग्रेशन tan इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स dx। ठीक है, अब देखो देखने से स्ट्रक्चर देखने से लग रहा है कि नहीं यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन ही कुछ करना है। अगर ऐसा स्ट्रक्चर है 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, मैंने एक दिन बोला था आप लोगों को, एक लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था इसके बारे में, से कौन सा स्ट्रक्चर रहने से कौन सा सब्स्टिट्यूशन होगा। 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स दैट मीन्स स्ट्रक्चर यहाँ पर ऐसा है ए प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स, ये फिर ए माइनस एक्स बाई ए प्लस एक्स, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर। अगर ऐसा स्ट्रक्चर है तो आपको x के जगह a cos 2 थीटा अगर सब्स्टिट्यूट करें, इफ यू सब्स्टिट्यूट x इक्वल्स टू a cos 2 थीटा, देन द कैलकुलेशन प्रोसीजर एंड द कैलकुलेशन स्टेप्स विल बी इजियर एंड यू कैन इजीली यूज दिस स्टेप। सो x इक्वल्स टू a तो मतलब यहां पर 1 है, सो ओनली cos 2 थीटा अगर यूज करें, dx इक्वल्स टू माइनस साइन 2 थीटा, 2 थीटा का 2, सो और डी थीटा तो है ही, डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 2 साइन 2 थीटा डी थीटा। तो यहां पर tan इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, तो देखो तो रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 1 प्लस कॉस 2 थीटा ब्रैकेट क्लोज, डी एक्स की जगह ये बिठा सकते हैं माइनस 2 साइन 2 थीटा डी थीटा। सो tan इनवर्स 1 माइनस कॉस 2 थीटा और 1 प्लस कॉस 2 थीटा दोनों का फॉर्मूला तो है। सो फॉर्मूला हम लोग को पता होना चाहिए। यहाँ पर रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और होल थिंग माइनस 2 साइन 2 थीटा डी थीटा। ठीक है, सो दैट मीन्स tan इनवर्स 2 कैंसिल, वो देखिए रूट tan स्क्वायर थीटा है ना, तो ओनली tan थीटा रहेगा, और ये माइनस 2 बाहर रख दो और रहेगा यहां पर साइन 2 थीटा डी थीटा। tan इनवर्स और tan कैंसिल होके सिर्फ थीटा रहेगा, आई थिंक है कि नहीं। तो माइनस 2 थीटा साइन 2 थीटा डी थीटा, बस हो गया। इसके बाद
आप लोग कंटिन्यू करेंगे, ये आप लोग कंटिन्यू करके मुझे दिखाएंगे। थीटा साइन 2 थीटा, यू इंटू भी, वही प्रोसेस नॉर्मल, ठीक है। हो गया। फिर लास्ट एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद स्टॉप कर देंगे। एक्स क्यूब साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई रूट 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 dx, ठीक है। तो कैसे करें? देख के तो लग रहा है सब्स्टिट्यूशन तो होगा। अब कौन सा सब्स्टिट्यूशन होगा? जिसका चेहरा सबसे ज्यादा खराब है, तो पूरे क्वेश्चन में तो मुझे एक चीज का ही खराब दिख रहा है, वो साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू जेड, दैट मीन्स 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब यहाँ पर x तो एक्स स्क्वायर है, तो 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा है। फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ट्वाइस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी जेड, सो दैट मीन्स एक्स डी एक्स बाई रूट 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 इक्वल्स टू डी जेड बाई 2, ठीक है। लिख सकते हैं क्या ऐसे? कैन आई राइट दिस लाइन? तो एक्स क्यूब जो है ना, उसको अगर मैं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई रूट 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 dx, तो देखो तो ये मिलके पूरा डी जेड बाई 2 है कि नहीं? एक्स डी एक्स बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स टू द पावर 4, ये पूरा डी जेड बाई 2। साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर तो आपने जेड लिया था, और एक्स स्क्वायर मतलब क्या है? साइन जेड होगा शायद, देखो तो। सो दैट मीन्स हाफ जेड साइन जेड डी जेड, सो हाफ, फिर से यू भी, ठीक है ना, जेड इंटीग्रेशन साइन जेड डी जेड माइनस इंटीग्रेशन डी डी जेड ऑफ जेड इंटीग्रेशन साइन जेड डी जेड बाहर डी जेड, हाफ इंटीग्रेशन जेड माइनस कॉस जेड माइनस ये तो 1 साइन जेड, दैट मीन्स माइनस कॉस जेड डी जेड, ठीक है। तो फाइनल टच दे दो। फाइनल टच क्या होगा? हाफ माइनस जेड कॉस जेड माइनस माइनस प्लस कॉस जेड का इंटीग्रेशन साइन जेड प्लस सी। अब जेड के जगह जेड का वैल्यू बिठा दो। जेड हमने क्या लिया था? यहाँ पर जेड होगा, जेड के जगह क्या होगा? साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर बिठा दो, माइनस साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर कॉस जेड मतलब साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस सी। बस हो गया, यहां पर ये फिनिशिंग दे दो, ठीक है ना। हाँ, तो ये होता है यू इंटू भी, दैट मीन्स इलेट प्रॉपर्टी का सॉल्यूशंस। एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस हैं उसमें से तो मतलब बेसिक क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है, और एडवांस लेवल का क्वेश्चंस भी हो गया है जो बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 1-2 क्वेश्चंस हम लोगों ने एंट्रेंस के लिए भी कर लिया है, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ यहाँ तक ही हम लोग स्टॉप करेंगे। वी हैव टू स्टॉप because many questions I think were solved in this lecture, and I think you need to practice it very well, and after that you will be confident in this integration part. So it is not possible that all the time just I am solving the questions and I am actually providing the solutions. You also I think should do or should solve some questions for your basic concepts, for clearing the concepts, for the accuracy, for this speed, calculation speed, okay. All of these things are very important, okay. So आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, बाय एंड जय हिंद।